ठीक है, पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मोस्ट ऑफ अस प्रीफर फिल्म्स विच, कौन से फिल्म प्रीफर करते हैं? बाय वॉचिंग थ्रिलिंग एडवेंचर्स इन फिल्म्स वी मेक अप फॉर। फिल्म स्टार्स प्रेजेंट सिचुएशंस, कैसा सिचुएशन प्रेजेंट करते हैं? ओके, वेदर वी एडमिट इट टू आवरसेल्व्स और नॉट, we are aware that the daily life of students, office goers and housewives is, पैसेज पढ़ लेते हैं। The overwhelming vote given by the greater part of the public has so far been in favor of films which pass the time easily and satisfy. Films which pass the time, वो फिल्म जो टाइम पास करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज है ये, ठीक है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ फर्स्ट लाइन से पैसेज। The overwhelming vote given by the greater part of the public has so far been in favor of films which pass the time easily and satisfy that part of our imagination which depends on the more obvious kind of daydreams. We make up for what we secretly regard as our deficiencies by watching the stimulating adventures of the other people who are stronger, more effective or more beautiful than we are. ठीक है, then के बाद we are आया ना, clause आ गया, ठीक है, और pronoun है तो we आया है subjective case में, ठीक है। The conventional stars act out our daydreams for us in a constant succession of exciting situations set in the open spaces, in the jungles or in the underworld of great cities which abounds in crime and violence. We would not dare to be in such situations, but the situations are very exciting to watch since our youth is being spent in exciting situation to watch since our youth is being spent in day-to-day routine of school, office or home. ठीक है। Question is 106. According to the passage, most of us prefer films which, क्या होगा? A. C क्यों नहीं? Fulfill our secret wishes, नहीं, secret wishes fulfill नहीं करती है, नहीं, yes, यही हो। A option है। 107. By watching thrilling adventures in films, we make up for, क्या? B का शॉर्टकट, नहीं, B सेकेंड होना चाहिए ना। D4 the influence which we do not have, एक ये है, और B है the shortcomings in our lives। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। By watching thrilling adventures in films we make up for, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। थर्ड लाइन, we make up for what we secretly regard as our deficiencies by watching the stimulating adventure of the other people who are stronger, more effective or more beautiful than we are. इसी लाइन में आंसर है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? By watching thrilling adventures in films we make up for, इसे आंसर आ रहा है ना, we make up for, थर्ड लाइन, we make up for what we secretly regard as our deficiencies by watching the stimulating adventures of the other people who are stronger. क्यों भाई, क्या आंसर होगा? हेलो, कोई जवाब नहीं दे रहा। सर D4 भी तो ये कह रहा है कि that influence which we do not have,
मतलब जो हम नहीं कर पाते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, ये कह रहा है सर। और जो सी में कह रहा है वो कह रहा है स्टिमुलेटिंग, मतलब हमारी एवरीडे लाइफ के को स्टिमुलेट करता है। बी क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है? शॉर्ट कमिंग इन आवर लाइफ, शॉर्ट्स कमिंग। हाँ, तो अब अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि गलत क्या, सब लोग भाई पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रूल्ड आउट। यस सर। सारी ऑप्शन है ना, ए बिल्कुल नहीं हो सकता, रूल्ड आउट। यस सर। ठीक है, सर बी और डी में कंफ्यूजन। द स्टिमुलेशन ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, ये भी नहीं हो सकता, ये तो गायब हो गया। ठीक है, अब देखना ये है कि क्या कह रहा है। बाय वॉचिंग थ्रिलिंग एडवेंचर्स इन फिल्म्स वी मेक अप फॉर। जब हम थ्रिलिंग एडवेंचर्स फिल्मों में देखते हैं तो मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना। बोलो भाई। यस सर, कंपनसेट करना। कंपनसेट, तो हम क्या कंपनसेट करते हैं? इन्फ्लुएंस, जो हमारे, वह प्रभाव जो हमारे पास नहीं है, या जो हमारी लाइफ की कमियां हैं। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी देखना है कि दोनों में ज्यादा एक्यूरेसी किसके पास है। तो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है? Sorry. The overwhelming vote given by the greater part of the public has so far been in favor of films which pass the time easily and satisfy that part of our imagination which depends on the more obvious kind of daydreams. We make up for what we secretly regard as our deficiencies. ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। We make up for what we secretly regard as our deficiency. हम उस चीज को कंपनसेशन करते हैं जिसको हम चुपके से ही मानते हैं कि हमारी कमी है। By watching the stimulating adventures of the other people who are stronger, more effective or more beautiful than we are. The conventional stars act out our daydreams for us in a constant succession of exciting situations set in the open spaces, in the jungles or in the underworld of great cities which abounds in crime and violence. We would not dare to be in such situation, but the situations are very exciting to watch since our youth is being spent in day-to-day routine of school, ऑफिस और होम। तो जो फोर्थ ऑप्शन आप लोग ले रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस विच वी डू नॉट हैव। ये बात यहाँ पे कही गई है क्या पैसेज में? प्रभाव की बात हो रही है क्या? कि वह प्रभाव जो हमारे पास नहीं है। हेलो, खुल के बात करिए भाई आप। बी होना चाहिए सर। सर बी। अनीता मैडम। यस सर। क्या ये बात कही गई है कि जो प्रभाव हमारे पास नहीं उस प्रभाव को कंपनसेट करता है, या जो हमारी कमजोरियां हैं, डिफिशियंसीज है, उसको कंपनसेट करता है? डिफिशियंसीज को कंपनसेट करता है सर। एकदम क्लियर हो गया, बस वर्ड बदल गया है। आपके क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन दिया उसमें शॉर्ट कमिंग्स दिया है और वहां पे डेफिशिएंसीज दे दिया, तो बात तो एक ही हो गई ना। ओके सर। बोथ हैव दिस। नहीं, जबरदस्ती नहीं, ओनली इफ यू एग्री एट योर ओन। टिक करें बी को। आई एम नॉट इंसिस्टिंग। बाकी लोग साइलेंट है। अरे भैया कर रहे हैं, पढ़ें इसको। ये इंतजार में तो नहीं थे गुरु जी आएंगे 8 बजे तो पढ़ाएंगे, फिर कर भी देंगे। अकॉर्डिंग टू मी बी है। पार्टिसिपेट किया करिए भाई। फिल्म स्टार्स प्रेजेंट सिचुएशंस, ठीक है। 108 film stars present situations which are familiar to us, the city dwellers, which we have seen only in jungles, which we meet every day at work, which excites us. क्या होगा? Which excites us. इसमें ये वर्ड साफ दिया है। The convention we will not there. Situations are very exciting to watch since, हाँ दिया इसमें, which excites us, यही होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ना? डी सर। फोर्थ ना?
डी। असल में मुझे बी और डी में थोड़ा सुनने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछ लेते हैं। ओके, वेदर वी एडमिट it to ourselves or not, we are aware that we are weak and plain, we are both powerful and handsome, बिल्कुल नहीं। we are as strong as film heroes, we are more beautiful than film stars। ये बात कहीं पे कही गई है क्या? सर फर्स्ट होगा ना, we are weak and plain। नहीं, पर ये बात कहीं कही गई है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा ना। सर जो डिफिशियंसी दे रहा है ना सर, इसका सेंस यही निकल के आता है ना कि मतलब जो हमारे अंदर की कमियां हैं, है ना। नहीं मैडम, वो चीज नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये इस तरह की बात अगर कहीं कही गई होगी, इसको पढ़ के देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदर वी एडमिट इट टू आवरसेल्व्स और नॉट, हम स्वयं से ये स्वीकार करें या ना करें, ठीक है। वी आर अवेयर दैट, अब किस बात को लेके अवेयर है, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं कहा गया, फर्स्ट लाइन में तो नहीं कहा गया है, एक सेकेंड, हो सकता है फर्स्ट लाइन में मिल जाए। The overwhelming vote given by the hold on, please. The overwhelming vote given by the greater part of the public has so far been in favor of films which pass the time easily and satisfy the part of our imagination which depends on the more obvious kind of daydream। इससे रिलेटेड कोई बात यहाँ नहीं कही गई है। उसके बाद we make up for what we secretly regard as our deficiencies by watching the stimulating adventure of the other people who are stronger, more effective and more intelligent than we are। हाँ मैडम, आप बताइए आप क्या कह रही थी। नहीं था मैडम? सर नीचे से जो सेकंड लाइन है सर, उसको पढ़ लीजिए। We would not dare। We would not dare, okay। We would not dare to be in such situation, but the stimulus are very exciting to watch since our youth is being spent in day-to-day routine of school। नहीं, ये जो कह रहा है we would not dare to be in such situation, ऐसे सिचुएशन में होने की हम हिम्मत नहीं कर सकते। ये इसके ऊपर वाले लाइन का रेफरेंस लेके बोल रहा है। अब मैं नीचे से चौथे लाइन पे जा रहा हूँ। द कन्वेंशनल स्टार्स, जो पारंपरिक स्टार्स है, द कन्वेंशनल स्टार्स एक्ट आउट आवर डे ड्रीम, हमारा जो डे ड्रीम है उसको एक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। द कन्वेंशनल स्टार्स act out our daydreams for us in a constant succession of exciting situations set in open spaces, in the jungles or in the underworld of great cities which abounds in crime and violence। We आगे कह रहा है we would not dare to be in such situations, मतलब प्रैक्टिकली हम हिम्मत नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में। कौन सा, जो अंडरवर्ल्ड या जंगल या ओपन स्पेस की सिचुएशन है, राइट मैडम? ठीक है, यस सर। हाँ, बट द सिचुएशंस आर वेरी एक्साइटिंग, भले हम हिम्मत नहीं करेंगे लेकिन वो सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग है, आर वेरी एक्साइटिंग टू वॉच सिंस आवर यूथ इज बीइंग स्पेंट इन डे टू डे रूटीन ऑफ स्कूल। अब इसमें देखते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि हमको मल्टीपल चॉइस में करेक्ट आंसर बहुत इजीली नहीं मिल पाता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए एलिमिनेट करने का, क्या कि कौन सा आंसर गलत है। जैसे 107 में किया था, 2 गलत निकला, तो इसमें भी देख लेते हैं। वी आर वीक एंड प्लेन में भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वी आर बोथ पावरफुल एंड हैंडसम, ये बात कही नहीं गई है, ठीक है, लेकिन हाँ मिल सकता है। वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज फिल्म हीरोज, ये बिल्कुल नहीं, सी तो बिल्कुल नहीं होगा। वी आर मोर ब्यूटीफुल, देखिए सी और डी तो कहीं से नहीं हो सकता, क्योंकि कहा ही नहीं गया कि हम उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना फिल्मी हीरोज हैं, या वी आर मोर ब्यूटीफुल देन फिल्म स्टार्स, ये बात भी नहीं कही गई है। तो सी और डी को हम रूल आउट कर दें, बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, अब बचा क्या, ए और बी। अब इसमें हम देख लेते हैं ए और बी में से किसकी पॉसिबिलिटी है। ए कह रहा है वी आर वीक एंड प्लेन, ये बात हजम नहीं हो रही है क्योंकि पैसेज में से कोई बात कही नहीं है। वी आर बोथ पावरफुल एंड हैंडसम, ये कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। ये लीजिए आप, ऊपर से थर्ड लाइन, ऊपर से we make up for what we secretly regard as our deficiencies by watching the stimulating adventures of other people who are stronger। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, by watching the stimulating adventures of other people, अन्य लोगों के एडवेंचर्स को देख करके,
अदर पीपुल हु आर स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री में लगा है। हु आर मोर इफेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री देन वी। तो कंपेयर किससे हो रहा है? वी से हो रहा है। किनका? उन लोगों का। तो वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, हमसे ज्यादा इफेक्टिव है, हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसका मतलब है कि हम भी स्ट्रांग है, हम भी इफेक्टिव है, हम भी ब्यूटीफुल है, पर वो हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल और इफेक्टिव और स्ट्रांग है। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस एवरीवन। Yes, sir. तो यहाँ तो वहां से ये रेफरेंस मिल रहा है कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में आ गया है ना वो। तो कंपैरेटिव मतलब वो हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, हमसे ज्यादा इफेक्टिव है और हमसे ज्यादा क्या हैंडसम है। ठीक है, तो हमसे ज्यादा हैंडसम है, हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसका मतलब हम उनसे कम ब्यूटीफुल है, अगली नहीं है ब्यूटीफुल। तो नहीं कर रहा ना यहाँ पे कि हम उनके बराबर ही पावरफुल है। वो कंपैरिजन में तो यही कह रहा है कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये भी तो सेंस नहीं देता ना कि हम दोनों ही पावरफुल है, हम भी और वो भी। बिल्कुल, अरे मैडम बिल्कुल बिल्कुल यही तो सेंस आ रहा है। 2 मिनट रुकिए। अगर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे आप पहले तो इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हु आर स्ट्रॉन्गर, मोर इफेक्टिव और मोर ब्यूटीफुल। जो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा जो कौन? लोग। कौन? फिल्मी लोग। ठीक है, तो ज्यादा इफेक्टिव किसका है? साफ साफ दिया। देखिए सेंटेंस का मीनिंग ऐसे देख लीजिए ना, मैं लिख दे रहा हूँ। पीपल who are stronger, more effective, and more beautiful. अभी आप लोग सुबह ही ब्यूटीफुल आगे क्या है? दैन। आप लोग सुबह ही पढ़े हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर दैन आ गया तो दैन के माध्यम से तुलना होगी दो लोगों की या दो ग्रुप की। ठीक है, तो दैन के पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा कंपैरेटिव में आएगा। दैन के पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा कंपैरेटिव, दैन के पहले जो भी एडजेक्टिव आएगा कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के माध्यम से दो की तुलना होगी। तो इन पीपल, फिल्मी पीपल की तुलना किससे हो रही है? देन वी आर। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा अनीता मैडम? ठीक है, तो जब हमने ये कह ही दिया कि वो लोग हमसे ज्यादा मजबूत हैं, वो लोग हमसे ज्यादा मजबूत हैं, जिसका मतलब हम कमजोर हैं कि हम भी मजबूत हैं। मजबूत तो हम भी हैं, पर मजबूती में उनकी मजबूती हमारी मजबूती से ज्यादा है। यही बात तो हो रहा है। यस सर। बोलिए भाई। यस सर। जवाब ही नहीं आता, ऐसा क्लास लेने का मजा ही नहीं आता, फिर डिस्कशन कोई मतलब ही नहीं है। बाकी लोग चुपचाप मुक्त दर्शक बन के बैठे हुए हैं। अरे भाई, जो मैं बात यहाँ बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम आपसे ये कहें, कभी कभी आवाज कट जा रही स्क्रीन में गायब हो जा रहा है। जी हाँ सर, मेरे साथ हो रहा है क्या? कभी कभी आवाज कट जा रही है, स्क्रीन भी गायब हो जा रहा है। क्यों भाई, और किसी के साथ ये हो रहा है क्या? नेटवर्क का डिस्टरबेंस, आवाज कट जा रही है और नहीं सर। नहीं यस सर। कितने लोगों को दिक्कत आ रही है कि आवाज भी कट जा रही है और स्क्रीन भी गायब हो जा रहा है? गुड इवनिंग सर, हमारा तो प्रॉपर आ रहा है। डेटा कम आवाज भी आपकी क्लियर है और स्क्रीन बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये लोकल इश्यू होगा वहां का। जो लोग अगर वाईफाई से ज्वाइन किए हैं तो एक बार क्विट करके रिज्वाइन करें। ठीक है, जो लोग मोबाइल डेटा से भी ले रहे हैं एक बार क्विट करके रिज्वाइन करें। जो लोग मोबाइल डेटा से ले रहे हैं उनके बारे में बता दें। अच्छा, बात बताता हूँ। तो जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखे हैं कि यूएसए is stronger than India। इसका ये थोड़े मतलब है कि इंडिया कमजोर है। आपने स्ट्रॉन्ग हाँ। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ना यहाँ से वी मेक अप फॉर से लेके ना सर ये पूरा आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हो सकता है मेरा ही कंफ्यूजन हो, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं वो ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो इतनी लाइन लिखी गई मैडम, जो कंपैरिजन में आप तो पहले से भी पढ़ी है, दोनों बैच पढ़ी है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से कंपेयर करते हैं। जब हमने ये इसी सेंटेंस को लिया, हमने ये कहा कि यूएसए इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया।
ठीक है, तो यूएसए ज्यादा मजबूत है इंडिया से। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कमजोर है। अगर इसको हम दोनों को उसमें लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो हम यही लिखते हैं ना, यूएसए इज स्ट्रॉन्ग और फिर इंडिया इज स्ट्रॉन्ग। यस सर। इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, है ना। अब हमसे कोई पूछता कि भाई स्ट्रॉन्ग तो दोनों है, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो हम ये लिखते ना कि यूएस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से, हाँ है ना। इसका ये मतलब थोड़ी कि इंडिया कमजोर हो गया। इंडिया भी स्ट्रॉन्ग है, पर जितना स्ट्रॉन्ग यूएसए है उतना नहीं है। यही बात होती है ना कंपैरेटिव डिग्री में। एकदम क्लियर। अब आप जो कह रही थी, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो, हाँ बोलिए, कौन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं, ओके। जो लोग मोबाइल डेटा से क्लास लेते हैं, अगर उनको 2 GB ही पर डे मिलता है या 1.5 मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट हाफ अगर 50%, फर्स्ट हाफ जो 50% होता है वो अगर डेटा आपका खत्म हो गया तो सेकेंड हाफ जो डेटा बचता है वो थोड़ा वीक रहता है, और गूगल मीट पे डेटा अच्छा चाहिए होता है। ठीक है, ओके। मैं पढ़ दे रहा हूँ। वी मेक अप फॉर व्हाट वी सीक्रेटली यानी चुपके से, रिगार्ड एज आवर डिफिशियंसी, जिसको चुपके से हम अपनी कमी मानते हैं, उसकी वो भरपाई कर देता है। क्या भरपाई करता है? बाई वॉचिंग द स्टिमुलेटिंग एडवेंचर्स ऑफ द अदर पीपल, अन्य लोगों का जो एडवेंचर है उसको वॉच करके। और बाकी जो आगे दिया हु आर स्ट्रॉन्गर, तो ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है, उसकी खासियत बता रहा है। उसके बाद क्या, मोर ब्यूटीफुल देन वी आर, तो हम भी स्ट्रॉन्ग हैं, हम भी इफेक्टिव हैं, हम भी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा है। ये बात हुई ना? यस सर। क्लियर है जी। ठीक है, ओके। तो इसमें यही है, वी आर बोथ पावरफुल एंड हैंडसम। क्यों? अगर आप ऐसे भी नहीं कोई सेटिस्फाई हो तो ऐसे देख लेते हैं। 109 में सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हम लोग जो है रूल आउट कर दिया था। ठीक है, अब ए बी बचा। ए को देखिए, वी आर वीक एंड प्लेन, ये कहीं से पैसेज से पता चला है कि हम लोग वीक हैं? नहीं ना? नो सर। हालांकि इसका रेफरेंस मिल रहा है। मुझे तो जो सर ये पहली लाइन थी ना, बी मेक अप व्हाट वी सीक्रेटली रिगार्ड एज आवर डिफिशियंसी, मतलब जो हमारी कमियां है ना, उन कमियों को हम उन्हें देखकर स्टिमुलेट करते हैं, उनके एडवेंचर को देखकर। यानी हमारी तो कमी है और हम जो दूसरे लोग कर रहे हैं तो हमें भी साहस भर देती है। मैंने इस सेंस में लगाया था सर। नहीं, वो साहस नहीं भरती हैं, साहस नहीं भरती। क्या कह रहा है कि हमारे अंदर कमी है, और उन चीज को जब हम देखते हैं तो कमियों को जो हम महसूस करते हैं, वो उसका भरपाई हम वहां कर लेते हैं, उसको देख के कि हम वहां पे होते तो ऐसा होता, हम ऐसा करते। ये बात है, तभी तो उसको डे ड्रीम की तरह माना है। ठीक है, ओके, ठीक है, लेट्स प्रोसीड। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 109 का बी हो जाएगा। 1010 का, द डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट, ऑफिस गोअर्स एंड हाउसवाइफ्स इज फुल ऑफ न्यू एडवेंचर्स, बिल्कुल नहीं। द सेम डल रिपीटेशन, यही होना चाहिए। स्टिमुलेटिंग टू देयर इमेजिनेशन, बिल्कुल नहीं। वेरी एक्साइटिंग, बिल्कुल नहीं। तो 110 का जो होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है ना? बोलिए भाई। यस सर। सर डी होना, फोर्थ होना चाहिए सर। नहीं मैडम, 110 का जो है बी ही होगा, द सेम डल रिपीटिशन। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है 110 में? नो सर। नो सर, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं ग्रामर के टॉपिक पे। ठीक है,